हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरो फंक्शंस। इसके बेसिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन दोनों देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखिए, जस्ट फॉर अ रिफ्रेशमेंट। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, लेट्स से हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से फंक्शन सम टू calculate the sum of two numbers, let's say, right? So we declare the function like this, curly bracket में return करते हैं हम लोग दोनों का एडिशन a plus b. So this is called as what? Function declaration. इसको हम कॉल कैसे करेंगे? Sum and then 10 comma 20. This is how we call. So this is called as what? Function declaration, right? Next is what? Function expression. Function expression. फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है, हम लोग एक वेरिएबल को, लेट्स से मैंने एक लेट वेरिएबल लिया सम, उसको पूरा का पूरा फंक्शन एज अ वैल्यू पास करते हैं, फंक्शन एज अ वैल्यू पास करते हैं, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर्स ले लेंगे a कॉमा बी एंड विल रिटर्न a प्लस बी। ओके, सो कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने का तरीका सेम ही है, सम फंक्शन कॉल करेंगे and then 10 comma 20, any number you can pass to it. Okay, so this is what function declaration, this is what function expression. There is one more way where we can declare a function, which is called as what? Arrow function. Which is called as what? Arrow function. Arrow function. ठीक है, so what is the syntax of this arrow function? What is the syntax? So syntax is something like this. Let's copy this, paste it here. So we are creating a variable. We are creating a variable and assigning what? An arrow function. Now this is why it is called as an arrow function, because if you see there is similarity with the function expression. Function expression में भी हम क्या करते हैं, ऐसे पैरामीटर लेते हैं, इसमें भी हम ऐसे पैरामीटर लेते हैं, लेकिन क्या फंक्शन कीवर्ड अवेलेबल है, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है. देन यू हैव एन इक्वल टू एंड अ ग्रेटर देन साइन which looks like an arrow, which looks like an arrow. That's why it is called as what? Arrow function. And here you can write your expression, your alert, your sum, return, whatever you want to do, you can do it here. So this is what the syntax of the arrow function. You are declaring a variable, assigning a function, which is an arrow function. Why it is called as an arrow function? Because it looks like an arrow. This looks like an arrow, right? Right side arrow, that's why it is called as an arrow function, and function keyword is not required here. So this is what? This is the arrow function. This is what? This is the arrow function. Okay, so now let's see how we can write this particular sum function that we wrote in the function expression as an arrow function. Okay, so let sum is equal to, then we'll take two parameters a comma b, right, and then we create an arrow which is something like this, and then your expression. So expression is what here? Expression is return a plus b. So we can write return a plus b semicolon. Okay, now what is the advantage of writing this particular function? If you see in the function declaration, you have to use a keyword called as function. In expression also you have to write function keyword, then you have to give curly brackets, right? Curly brackets भी आपको देने पड़ते हैं, right? Then you have to write return also. But advantage of using arrow function is, सबसे पहली बात, we don't require an return. You can directly write a plus b. What this arrow function will do, it will, whatever value will be calculated here, it will be returned automatically to this sum variable wherever it is called from. Where it is called from. So कॉल करने का तरीका क्या है, कॉल करने का तरीका जो है वो सेम है, कॉल करने का तरीका जो है वो सेम है. So this is what is called as an arrow function. Why it is called as an arrow function? Because there is an arrow associated with this. And what are the advantage? First advantage मैंने बताया, function keyword का जरूरत नहीं है. Isn't it irritating कि हर बार function लिखो,
राइट। फंक्शन एज अ कीवर्ड लिखना पड़ता है, यहाँ पे फंक्शन एज अ कीवर्ड लिखना ही नहीं पड़ता। रिटर्न एक कीवर्ड और यूज होता है, इसमें अगर आपका एक एक्सप्रेशन है तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरो फंक्शन। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस? सपोज यू हैव अ फंक्शन, let's say we have a function called as double. Let double equals, okay, and then you have to pass a parameter here, let's say only one parameter as n, okay, and then what you need to do, whatever number is passed you have to multiply it by 2. So this is the, so is return keyword required? Is return keyword required here? No, it is not required, right? It is not required. How we will call it? Double and then 10 comma 20, right? Now ये जो n है ये एक सिंगल है ना, सम जब हमने लिखा था ऊपर, राइट, तो इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे थे। तो जब दो पैरामीटर पास होते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। जब एक ही पैरामीटर है यू कैन स्किप दिस ब्रैकेट्स ऑल्सो, यू कैन skip this bracket also. So this is one of the advantage of using arrow function. क्या एडवांटेज है कि अगर एक ही पैरामीटर पास कर रहे हो तो ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, रिटर्न लगाने की भी जरूरत नहीं है, फंक्शन कीवर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्या तीन एडवांटेज है? नो फंक्शन कीवर्ड, नो फंक्शन कीवर्ड। सेकेंड एडवांटेज क्या है? अगर एक ही एक्सप्रेशन है तो नो रिटर्न, नो रिटर्न कीवर्ड, नो रिटर्न कीवर्ड। थर्ड एडवांटेज क्या है? थर्ड एडवांटेज क्या है? अगर एक ही पैरामीटर है तो नो ब्रैकेट्स। अगर एक भी पैरामीटर नहीं है तो लेट से मैंने कोई फंक्शन बनाया, लेट abc इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न की भी जरूरत नहीं है, राइट। लेट से मैं यहाँ पे कुछ अलर्ट कर रहा हूँ, अलर्ट abc, राइट। तो इस केस में एक भी पैरामीटर पास नहीं हुआ, क्या इस केस में पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ती है? यस, इस केस में पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वन पैरामीटर होता है उस केस में पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। दो पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ती है, दो से ज्यादा है तो भी पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ती है, बट एक ही पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि जब एक ही पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस मत लगाओ, रिटर्न भी मत लगाओ, फंक्शन भी मत लगाओ, राइट। लेकिन अगर एक से ज्यादा पैरामीटर है तो आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज कि एक ही पैरामीटर है तो बिना ब्रैकेट के भी चल जाएगा, ठीक है। बट अगर पैरेंथेसिस एम्प्टी है, इसका मतलब है एक भी पास नहीं हुआ है, उस टाइम पे पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। जब एक भी पैरामीटर नहीं है तो पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने फंक्शन एक्सप्रेशन देखा था। फंक्शन एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा था कि हम यही सेम एग्जांपल देखा था हम लोगों ने। हम प्रॉम्प्ट मांगते हैं डिफॉल्ट वैल्यू के साथ 18। प्रॉम्प्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखो जाके। प्रॉम्प्ट क्या करता है, एक आपको क्वेश्चन पूछेगा और साथ में एक वैल्यू डिफॉल्ट दे देगा 18, राइट। अगर उसने एज डाली लेस देन 18, क्वेश्चन मार्क मतलब टर्नरी ऑपरेटर, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जब ये है तो हमने फंक्शन एक्सप्रेशन में इसको कैसे लिखा था, फंक्शन एक्सप्रेशन में कैसे लिखा था याद है? कॉपी करो इसको, इसको फंक्शन एक्सप्रेशन में हमने कैसे लिखा था? लेट वेलकम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने सेम वही डाला था, एज लेस देन 18 अगर है, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या बोला था, एक्सप्रेशन लिखो, यानी फंक्शन कीवर्ड यूज करो, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे लिखो अलर्ट hello. This is how we used to write in expression, in function expression, right? Otherwise एक अलग फंक्शन कॉल करो, एनोनिमस है, राइट, नाम नहीं है फंक्शन का, एंड देन अलर्ट ग्रीटिंग, अलर्ट ग्रीटिंग, ओके। सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू राइट इट इन द फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसको ही हमने क्या कर दिया,
एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, ये फंक्शन ऐसे लिखने की बजाय, एक्सप्रेशन की बजाय हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन लिखेंगे। एरो फंक्शन, एरो लगाया, पैरेंथेसिस लगाया, एरो लगाया और फिर लिख दिया हमारा अलर्ट, जो भी एक्सप्रेशन हमको एग्जीक्यूट करना है वो, राइट। वैसे ही यहाँ पे इस फंक्शन को हटाया, फंक्शन को हटाने के बाद क्या लिख दिया, एरो फंक्शन लिख दिया। क्या लिख दिया, एरो फंक्शन लिख दिया। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स। समझ में आ गया इतना। तो हम फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू कर रहे थे, अभी हम इसको एरो फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, मल्टी लाइन एरो फंक्शन। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी एरो फंक्शन लिख रहे थे उसमें एक लाइन लिख रहे थे, जैसे अलर्ट लिखा हमने, या फिर हमने ए प्लस बी को रिटर्न किया था, या फिर हमने यहाँ पे अलर्ट लिखा, राइट। दिस इज ओनली सिंगल लाइन, दिस इज सिंगल लाइन कोड, दिस इज सिंगल लाइन कोड। व्हाट इफ वी हैव टू राइट मल्टी लाइन कोड, मतलब मल्टीपल चीजें लिखनी है एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सम का एग्जांपल लेते हैं। लेट सम इज इक्वल टू, दो पैरामीटर पास करेंगे, दो पैरामीटर पास करेंगे ए कॉमा बी, राइट। आरो बनाएंगे एंड देन अभी क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ ए प्लस बी कर रहे थे जो रिटर्न हो रहा था, राइट। बट अभी हम लोग को और भी कुछ चीजें करनी है, तो क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट। और लेट से मुझे अलर्ट करना है पहले तो ए को, ठीक है, फिर मेरे को अलर्ट करना है बी को भी, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, लेट्स से अलर्ट करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, और फिर मुझे क्या करना है, ए प्लस बी को क्या करना है, रिटर्न भी करना है। तो जब मैं ए प्लस बी यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या, ऐसे लिखूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज ये मल्टी लाइन है। अगर सिंगल लाइन होता तो हम क्या करते, सीधा का सीधा क्या करते, ए प्लस बी कर देते, रिटर्न की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप रिटर्न करता है, अपने आप रिटर्न करता है। बट इस केस में क्योंकि ये मल्टी लाइन है, इसमें हम लोगों ने और लाइन ऑफ कोड लिखा है, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो जब सिंगल लाइन है तो रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टी लाइन है तो रिटर्न लिखना पड़ता है, रिटर्न लिखना पड़ता है। देखो रिटर्न लिखा है ना इधर, दोनों को ऐड किया, एक वेरिएबल में डाला और रिटर्न कर दिया। समझ में आया, ठीक है। अब दिस वाज दी बेसिक्स ऑफ एरो फंक्शन, दिस वाज दी बेसिक्स ऑफ एरो फंक्शन। बट क्या इतना ही है कॉन्सेप्ट एरो फंक्शन का, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे और भी फीचर्स एरो फंक्शन में होते हैं जो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। बट अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है कि एरो फंक्शन होता क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल वे में आपको बता दिया व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एरो फंक्शन। एक बार जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ। एडवांटेजेस फर्स्ट है, पहले तो आप लिख लो कि कैसे लिखते हैं, कोई भी एरो फंक्शन को ऐसे लिखते हैं एंड देन एरो बनाते हैं एंड देन जो भी रिटर्न करना है वो रिटर्न का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब पहला एडवांटेज क्या है, नो फंक्शन कीवर्ड। नो फंक्शन कीवर्ड जो हमारा इसमें होता है, किसमें होता है, डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन में होता है, वो इसमें नहीं होता है। देन सेकेंड एडवांटेज क्या था, नो रिटर्न कीवर्ड, नो रिटर्न कीवर्ड रिक्वायर्ड, कीवर्ड रिक्वायर्ड। बट कंडीशन क्या है कि वन लाइन होगा तभी, अगर कोड एक लाइन का होगा यानी ए प्लस बी या ए माइनस बी या वॉट एवर अलर्ट एक लाइन होगा सिर्फ कोड, तो ही रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है। थर्ड क्या है, अगर एक ही पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं, अगर एक ही पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द थ्री एडवांटेजेस। मल्टी लाइन हमने देखा, मल्टी लाइन एरो फंक्शंस भी हमने देखा। उसमें क्या होता है, हम लोगों को ब्रैकेट लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे मैंने लेट सम इज इक्वल टू, इसके अंदर ए कॉमा बी एरो बनाया, ब्रैकेट लगाए, इसके अंदर लाइन ऑफ कोड लिखा, जो भी अलर्ट करना था, जो भी करना था आप कर सकते हो यहाँ पे, ए कॉमा ए,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न लिखना पड़ेगा, राइट, बिकॉज ये मल्टी लाइन है। जब सिंगल लाइन होता है तब रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होता है, जब वन लाइन होता है तो रिटर्न लिखने का जरूरत नहीं होता है, बट जब मल्टी लाइन होता है तो रिटर्न लिखने का जरूरत होता है। सो दिस इज व्हाट इज द समरी ऑफ दिस एरो फंक्शन। ओके, चलो एक टास्क है, टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सिंपल है, एक फंक्शन बनाया है आस्क नाम का, जिसमें 3 पैरामीटर है, क्वेश्चन विच इज अ स्ट्रिंग, वी आर पासिंग एज अ स्ट्रिंग, then yes and no, these two are the functions. When we are confirming the question, if user press ok, yes कॉल हो जाएगा, if user press cancel तो no पास हो जाएगा, no कॉल हो जाएगा। अब yes और no क्या है, फंक्शंस है। फंक्शन कैसे पास कर रहे हैं ये लोग, एज एन एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, राइट। अनोनिमस फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड है और इसमें कोई नाम नहीं है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शन एक्सप्रेशन। आपको इसको क्या करना है, इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, सिंपल है, ये कॉपी करेंगे, इधर डालेंगे, आस्क लिखेंगे सेम, ठीक है, देन सेम क्वेश्चन पास करेंगे, पहले तो डू यू अग्री, राइट, comma, and then instead of this type of function which is a function expression, we have to pass it as an arrow function, so we'll pass it like this, alert, you agreed, right, and again we'll pass it was as an arrow function, alert, you cancelled the execution. So this is how we write a function expression, this is how we write an arrow function. And why it is called as an arrow, because it looks like an arrow, that's why it is called as what, as an arrow function. इतना समझ में आ गया एरो फंक्शन का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।